Good evening, students. Students, we have started chapter number 2, Writing and City Life. And today's topic is urbanization in the southern Mesopotamia, temples and kings. Student, I told you that Mesopotamia is mainly divided through the two rivers, the Euphrates and the Tigris. It means the land between the two rivers is Mesopotamia. And in the southern side, in the southern region, there is a desert and agriculture is possible here. So, urbanization in the southern Mesopotamia means with the changes in agriculture, with the development of agriculture, many towns it starts set up in the southern part of Mesopotamia. बहुत सारी cities आई और वहाँ पे settlement start हुई. The settlements had begun to develop in the southern Mesopotamia from 5000 BCE. And in this topic we will cover that how did the earliest cities of southern Mesopotamia emerge, and we will focus on the construction and increasing importance of temples built in these cities. So अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं सेटलमेंट्स बात करूं कि लोग कैसे आना शुरू हुए, settlements it began to develop from 5000 BC, and some of the earlier city even emerged from these settlements. और बच्चे रीज़न क्या था सिटीज़ का डेवलप होने का? सिंपल रीज़न ये था कि ट्रांजैक्शंस बढ़ गई थी, बिजनेस बढ़ गया था, ट्रेड बढ़ गया था, एग्रीकल्चर फ्लरिश हो रहा था. सो द सिटीज़ they gradually develop around the temples, and there were imperial cities and cities which developed as a center of trade. क्योंकि ट्रेड बढ़ता जा रहा था तो सिटीज़ एस्टैब्लिश होना जायज़ सी बात है. एंड स्टूडेंट, अगर मैं मेन टॉपिक पे आऊँ, टेम्पल्स एंड किंग्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. और कैसे टेम्पल्स इमर्ज हुए, टेम्पल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है मेसोपोटामिया में. और किंग कैसे इमर्जेंस में आए, मतलब किंग कैसे आए अपनी पावर को लेकर और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. अर्ली सेटलर्स इन southern part of Mesopotamia, they begin to build or rebuild the temples at the selected spots in their villages. एंड स्टूडेंट, जो पहले के टेम्पल्स होते थे मेसोपोटामिया के, इट वॉज अ स्मॉल श्राइन विच वॉज मेड अप ऑफ द अनबेक्ड ब्रिक्स. पहले कच्चे टेम्पल्स होते थे, कच्ची मिट्टी के टेम्पल्स बनते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हुई, वैसे वैसे टेम्पल्स ने भी अपनी शेप, अपनी क्वालिटी को चेंज किया. इसका मतलब है पहले जो अनबिग ब्रिक्स के टेम्पल बनते थे, अब वो पक्के टेम्पल्स बनने लगे. एंड द टेम्पल्स वर द रेजिडेंस ऑफ द डिफरेंट गॉड्स. देयर वर अ वेराइटी ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन विच उर was the moon god, Inanna was the goddess of love and war. The people of the Mesopotamia, they worship these gods, and they were the devotees of these gods, especially the Ur, who was the moon god, and Inanna, who was the Devi or the goddess of love and war. They had full faith in these gods, and in Mesopotamia, in almost temples, there were sculptures of moon god and Inanna goddess. एंड स्टूडेंट, द मेन फीचर ऑफ टेम्पल, जितने भी टेम्पल्स थे उनका जो मेन फीचर्स था वो ये था दैट द टेम्पल वर मेड विद द ब्रिक्स. नाउ for earlier they were made of unbaked bricks, but now they were made with the bricks, and their size even gradually increased. It means in the beginning temples were very small, but now the size of the temples, they gradually increase because of the several rooms were made around the open courtyard, and some of the earliest temple were just like the ordinary houses. टेम्पल्स जो हैं अब बच्चे मेसोपोटामिया में बड़े हो गए थे. बड़े होने के साथ साथ अब वो एज अ ट्रेडिंग सेंटर भी काम करते थे. कहने को तो वो टेम्पल थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्टयार्ड में इतने सारे रूम्स अटैच किए जाते थे, और उन रूम्स में क्या चलता था, उस रूम में ट्रेड ही तो चलता था. जितने भी लोग आते थे वहाँ डोनेशन देते थे या गिफ्ट देते थे, उसकी वजह से वो टेम्पल कम और ट्रेडिंग सेंटर बन गया था. क्योंकि उस पैसे को, डोनेशन के पैसे को, चैरिटी के पैसे को कहीं ना कहीं इनपुट्स या रॉ मटेरियल खरीदने में ही इन्वेस्टमेंट की जाती थी. सो
God, no doubt it was a focus of worship, but people they also start trading in the temple. Firstly, they offered the grain, curd, fish, and other inputs or other input as a charity to the god. And student, then the activities of the temple they increased with the passage of time. Especially, it declared, or I can say, it act as a trading center in time. The processing of production was also done in the temple. प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई टेम्पल में. एंड टेम्पल्स में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई. इट बिगिन टू अपॉइंट द मर्चेंट्स. इट बिगिन टू कीप द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन, ब्रेड, फिश, बियर. एंड समवेयर इट बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन. वहाँ लोग आने लगे. जितनी भी चैरिटी होती थी उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था थ्रू द क्ले टैबलेट्स. एंड कहीं ना कहीं वो टेम्पल कम ट्रेडिंग सेंटर बन गया था. मतलब वहाँ लोग वर्शिप के लिए भी आते थे, लेकिन अपना जो बिजनेस है मेसोपोटामिया का, इन द कोर्ट यार्ड, द रूम्स हु वर अटैच विद दैट, वहाँ पे उनका क्या चलता था, बिजनेस चलता था. स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम एक तो टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक किंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे. इट मीन्स हाउ डिड kingship emerge in Mesopotamia, and what did the king do to increase his influence and control. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो किंगशिप आई है इट वाज द रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट. और कन्फ्लिक्ट किसके रिगार्डिंग था? ओवर द लैंड, ओवर द वाटर इन द मेसोपोटामिया. And there were repeated conflict for the reason of for the land and the water. And इस कॉन्टीन्यूस जो वॉरफेयर चला है इस रीजन में, इस वजह से जो है वहाँ पे बच्चे लूट होने लगी. सबसे पहले वो डिस्प्यूट क्या था वाटर एंड लैंड का. यूफ्रेट रिवर का मैंने आपको बताया था दैट यूफ्रेट रिवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय गिविंग द वाटर इन द सर्दर्न एरिया फॉर द एग्रीकल्चर. सर्दर्न पार्ट में जितनी भी एग्रीकल्चर होती थी वो यूफ्रेट पानी जो है उसे देती थी. लेकिन बच्चे अब क्या होने लगा, जो हिली एरियाज में लोग रहते थे, जो ऊपर लोग रहते थे, वो कई बार क्या करते थे, वो डाइवर्ट कर देते थे पानी. डाइवर्ट पानी करने का मतलब है किसी और डायरेक्शन में भेज देना पानी. या वो कई बार क्या होता था, जब यूफ्रेट का पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता था तो वो जानबूझ के सारा पानी नीचे डाइवर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से नीचे का जो एग्रीकल्चर पोर्शन है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगा ड्यू टू फ्लड. और इस वजह से ही लैंड को लेकर, वाटर को लेकर, बिटवीन द नॉर्थ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया एंड द साउथ पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, उनके बीच में क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी एंड कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लगे. और इसका फ़ायदा उठाया किसने? लूट और किंग्स ने, लूटर्स ने एंड किंग जो लूट करते हैं. देयर वॉज अ कंटिन्यू वॉरफेयर इन द रीजन, एंड that was the situation to the advantage took by the kings. And student, इसके बाद क्या हुआ, किंगशिप इमर्ज हुआ, किंग्स आने लगे. एंड स्टूडेंट, वो अटैक करने लगे छोटे छोटे एरियाज़ में. लड़ाई बढ़ती गई, एक दूसरे से वॉर होता गया. और कहीं ना कहीं जो भी जीतता था वो क्या करता था, दे टुक द प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप टू एम्प्लॉय देम एज देयर सर्वेंट और गार्ड. सपोज मैं साउथ में रह रही हूँ, अगर मैंने नॉर्थ मेसोपोटामियंस पे वॉर किया तो वहाँ के रीजन को तो मैं जीतूंगी, वहाँ की लैंड को तो जीतूंगी, वहाँ के लोगों को भी जीतूंगी और उनको एज अ सर्वेंट, एज अ स्लेव ट्रीट करूंगी. सो कहीं ना कहीं इससे जो है इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा मेरा. देन अगर मैं बात करूं द स्टेप्स टेकन बाय किंग टू इंक्रीज हिज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल. किंग ने क्या क्या किया अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए. फर्स्ट है बच्चे, the king began to pay attention toward the well-being of the community, and the new institution and the practices were created. Of course, this is the major, I think, major step that was taken by the king. Of course, जो मेरे subjects हैं
I have to maintain a balance between all the subjects. So राजा ने, किंग ने क्या किया, दे बिगिन टू पे अटेंशन, उन्होंने अटेंशन देना शुरू की, जितने भी लोग कम्युनिटी में रहते थे उनको थोड़ा सा उनकी प्रॉब्लम्स सुनना स्टार्ट की कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, एंड उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट ही स्टार्ट सेटिंग अप द इंस्टीट्यूशन एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रैक्टिसेस वर अबॉलिश्ड, विच द जहाँ लोगों को लगता था कि ये प्रैक्टिस अबॉलिश होनी चाहिए, किंग ने स्टेप लेना स्टार्ट किया. Then he began to offer the booty to the gods, and somewhere it beautified the community's temple. King he start donating for establishing the temples at the various places. बहुत सा दान दिया किंग ने, एंड बूटी होता है, इट मे बी अ सिल्वर कॉइन, इट मे बी अ गोल्ड कॉइन, भगवान के लिए उन्होंने दान देना शुरू किया. इवन स्टूडेंट, he sent man out to fetch the fine stones and the metal for the benefit of the god and community so that the temples could be beautified. इवन जो किंग्स थे उस टाइम के, वो भेजते थे लोगों को स्टोन्स लाने के लिए, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का स्टोन लाने के लिए, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे हो, ताकि लोगों को जो टेम्पल है वो अट्रैक्टिव लगे, टेम्पल में कोई कमी ना रह जाए, सो दैट द टेम्पल्स कुड बी ब्यूटिफाइड. और इसमें बच्चे मैंने आपको एक स्टोरी भी बतानी थी एनमार्कर की, क्योंकि ये पॉइंट आ गया है तो यहाँ पे एनमार्कर की स्टोरी भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. एनमार्कर भी जो स्टोरी है इसकी सेम है. एक किंग ने, मारी का किंग था, मेसोपोटामिया का सिटी है मारी, और उसके किंग ने एनमार्कर को भेजा कि आप लेपिस लुजली या कह लो लेपिस लजूली कह लो, एक स्टोन होता है बच्चे, ब्लू कलर का स्टोन, एनमार्कर को लेने भेजा गया कि हाँ भाई आप लेकर आइए ये स्टोन. एनमार्कर इट इज़ एसोसिएटेड विद द सुमेरियंस, मतलब उस टाइम पे जब सुमेरियंस थे, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट डेवलप हुए थे सुमेरियन. और बच्चे जैसे ही एनमार्कर ने चलना शुरू किया, ही क्रॉस वन माउंटेन देन द अनदर माउंटेन, वो चलता चलता इतना आगे पहुंच गया कि जब उसने माउंटेन से नीचे के लोगों को देखा, द पीपल लुक लाइक द टीनी माइस, छोटे छोटे चूहे होते हैं ना, वैसे लग रहे थे. और बच्चे इस टाइम पे 5 माउंटेन्स, 6 माउंटेन्स, 7 माउंटेन्स ही हैड ऑलरेडी क्रॉस, वो इतना ऊपर जा चुका था. अब बच्चे किंग ने तो कहा था ना एनमार्कर को कि क्या लेकर आना है, लेपिस लजूली लेकर आनी है, ताकि हमने उसको टेम्पल को ब्यूटीफाई कर सके, वो जो ब्लू स्टोन है वो हमने टेम्पल में देना है उसका टच, इसलिए आप लेकर आइए. अब बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटिंग का मेन रोल है. एनमार्कर जो था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था लेपिस लजूली लाने के लिए, तो फिर वो वापस आता है अपने किंग के पास और उनके फिर से मैसेज उनको जाकर देता है सूसा के पीपल्स को, जो सूसा जहाँ वो लेपिस लजूली लेने गया था. तो बच्चे यहाँ पे राइटिंग का मेन रोल क्या था कि इतने सारे मैसेजेस थे फ्रॉम द किंग टू द पीपल ऑफ सूसा एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ सूसा टू द किंग अबाउट द लेपिस लजूली, कि वो कंफ्यूज हो गया और उसने क्ले टैबलेट्स यूज़ किए कि मैं ये मैसेज लिख के किसको दूंगा, सूसा के लोगों को दूंगा, और फिर सूसा के लोग जिनके पास लेपिस लजूली है उनका मैसेज मैं किसको दूंगा, किंग को दूंगा. तो यहाँ पे राइटिंग का जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हुआ. अगर राइटिंग ना होती उनके पास तो वो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता एनमार्कर के लिए टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द मैनी मैसेजेस. लेकिन अब हम टेम्पल्स की और किंग्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे देखें, एनमार्कर की स्टोरी से ये तो क्लियर हो जाता है ना कि जो किंग्स हैं उन्होंने क्या किया, दे सेंट मैन to fetch the fine stones, to fetch the metal so that the temples could be beautified, temples ताकि अच्छे बने. इसके साथ साथ उन्होंने बूटी देना स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों के बारे में, लोगों को सुनना स्टार्ट किया, what are the problems, what are the suggestions given by the people. So the king also organized the distribution of temple wealth in such an efficient way by accounting for the things that came in and went out. जितना भी दान आता था, मैंने बताया था temples they act as a trading center, they were the temples come trading center. तो वहाँ जितना भी डोनेशन आती थी उसके बीच में उसको यूटिलाइज करना वो भी किंग का काम था. And student, now the people they begin to
they begin to feel safe living in close proximity to one another, क्योंकि इतना बैलेंस मेंटेन कर दिया था बिटवीन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स किंग ने, कि अब लोग सेफ फील करने लगे कि हाँ भाई, हम मेसोपोटामिया में जहाँ रह रहे हैं वहाँ का किंग जो है, नो डाउट, देखिए किंग एमरजेंस में आते हैं, कहीं का भी ले लो, वो तो वॉर करके ही आते हैं. देयर वॉज अ वॉर बिटवीन द साउथ एंड द नॉर्थ रीजन ऑफ मेसोपोटामिया. लेकिन इसके बाद जब किंगशिप वहाँ इस्टेब्लिश हुई तो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए. एंड इसमें एक चीज़ और बता दूँ बच्चे, जो एग्रीकल्चर टैक्स था, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्स वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया, मतलब उसमें भी छूट मिली गई, उसमें भी कंसेशन दिया गया. लोकल पीपल दे वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल एंड द किंग. लोकल लोगों को लगाया गया काम पे कि हाँ भाई वो टेम्पल की या किंग की देख रेख करेंगे. एंड दे वर पेड रेशंस इन कंसिडरेशन. एंड एग्रीकल्चर टैक्स वॉज कंपल्सरी. कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर टैक्स देना तो सबको ही था, हाँ थोड़ा सा कंसेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूर दिया गया. तो बच्चे, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन इन द सर्दर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग. इसमें अभी ओवरऑल अगर मैं समरी दूँ, इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है. टेम्पल्स में आपको उर, एक तो ये याद रखना है, द गॉड, द मून गॉड ऑफ उर, द इनाना ऑफ द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर. देन टेम्पल्स जो थे उनमें पहले के टेम्पल्स कैसे थे, कच्चे अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाए जाते थे. देन वो छोटे भी थे, स्मॉल थे साइजेस में. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वहाँ डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई तो टेम्पल्स बड़े होना स्टार्ट हो गए. टेम्पल्स को एज अ ट्रेडिंग सेंटर बनाने लगे. बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे वहाँ पे, डोनेशन देकर जाते थे. और किंग जो है मेनली वो बैलेंस मेंटेन करता था कि हाँ भाई सब कुछ जितना भी दान था वो किंग के अंडर था. नो डाउट उनके बाद भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ थी, इवन टेम्पल के प्रिस्ट भी थे, बट ऑल वर कम अंडर द किंग. और फिर किंग्स कैसे आए इमरजेंस में, किंग आए थ्रू द वॉर, बिकॉज द conflict on the topic of water over the water in the land, it gave rises to the emergence of king. I hope this is clear to you, student. If you have any doubt, in the next online classes we will take the doubts. I'll take the doubt of this topic, urbanization in the southern Mesopotamia, temple and king. And if you have any doubt, you can call me even. Thank you, students.